and we are here on top of the Delhi-Noida tollway, Yeah, that's my first PPP project in India. and that's where the PPP primarily started in India. तो आज हम लोग अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हमारा आगे का क्या कार्यक्रम है। And we will take you on a journey of PPP, the ensuing episodes. Thank you very much. Continue to stay with us. I am an international PPP expert who has been working not just in India, working with the Indian government, the various state governments, the public sector undertakings, but also our neighboring countries like Sri Lanka, Bangladesh and Nepal. I have done thousands of PPP and infrastructure projects. Many of those projects are renowned and very well known, the first of which we have already seen, the D&D Expressway. And I have been very fortunate to have worked and given advice in 35 smart cities in India as a PPP expert. Currently, I am doing 11 leading projects as finance, PPP and investment expert. And I am in a very big way in tourism projects, again as a PPP expert. Dr. Naresh Bana, a peer-recognized international consultant who has been with the public authorities in my initial years, then with the contract execution companies and a consultant for last 1.5 decade. I bring along a huge experience of PPPs from various sectors, and as assured, we are going to take you on an interesting journey of PPPs in our forthcoming episodes. So I think first thing that we should start is the D&D Expressway, which we went to today. The first thing that I would like to tell you about the D&D is that it had been a huge learning for India. हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला D&D Expressway से, because the project had many fault lines. That was one of the first PPP projects in the road sector in India. And fortunately for me, that was also my first PPP project. So I will just briefly tell you the story behind D&D Expressway and what were the learnings from that project. So friends, it was sometime in 76, 77 that a new city like Noida was developed by the Noida Authority and the UP government. So there was a lot of traffic which was moving from Delhi to Noida and Noida to Delhi. There were 3 other bridges which were on the Yamuna river. But it was then felt to have one more additional bridge to take care of the traffic which was increasing day by day. And then the idea of a toll bridge came up. But it was not until the late 90s that the idea got a firm shape. तो उस वक़्त जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके इनिशिएटिव पे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा और इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स रहे, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. उन लोगों ने मिल के कोशिश की कि ये एक टोल रोड हो जो कि रेवेन्यू कलेक्ट कर सके. तो ये एक शुरुआती प्रोजेक्ट था. पीपीपी की कहानी जो है हमारे देश में बहुत लंबी है और इस प्रोजेक्ट से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. और पीपीपी की कहानी अगर इंडिया की बात करें तो एक्चुअल में 1991 से जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो हम इसको ट्रेस कर सकते हैं. लेकिन 1994 में जो टेलीकॉम सेक्टर में प्रोजेक्ट हुए वो असली में पीपीपी नहीं कहे जा सकते. और वास्तविक रूप में जब नेशनल हाईवे एक्ट 1956 को 1995 में अमेंड करके प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अप्रूव किया गया, तब से हाईवे सेक्टर में एक्चुअली हम कह सकते हैं कि पीपीपी की शुरुआत हुई. तो ये बात बिल्कुल सही है. शुरुआती जो प्रोजेक्ट थे ज़्यादातर रोड सेक्टर में थे
और अगर हम कैलकुलेट करें तो 60% प्रोजेक्ट्स जो हमने किए पीपीपी में, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, उसमें 60 से लेके 70% प्रोजेक्ट सिर्फ रोड सेक्टर के ही थे। बाकी सेक्टर्स अगर हम देखें तो सिर्फ 30% प्रोजेक्ट थे, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था या और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो थे वो हम लोगों ने किए। लेकिन एक समय आया जब हमारे देश में ऐसा लगा कि नंबर ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट्स में कमी आ रही है, तो हम लोगों ने उस वक्त जो देश के वित्त मंत्री थे मिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने केलकर कमेटी फॉर्म की और केलकर कमेटी ने बहुत मेजर रिकमेंडेशंस दी। अब आप ये कहेंगे कि हम पीपीपी की बात करे जा रहे हैं और चूंकि ये पहला एपिसोड भी है तो क्यों ना हम पीपीपी को थोड़ा और गहराई से जान लें। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर एक देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई होती है, क्योंकि देश की आर्थिक और बिजनेस को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और पैसा होने के बावजूद भी सरकारें अपने आप सारे काम नहीं कर सकती हैं और इसके लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है। जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन में जो प्राइवेट पार्टी होती है वो ना केवल अपने तरफ से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, धन इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि अपनी मैनेजरियल और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी लाते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर फ़ायदा उठाते हैं, जिससे कि एक बिज़नेस की तरह से वो रन हो और एक एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहला जा सके। अब सरकार ने इसके बारे में बड़ी अलग अलग देशों में अलग अलग डेफिनेशंस हैं और हमारे देश में जो डेफिनेशन है मैं उसको आपको बिल्कुल पढ़ के बताऊंगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स एन अरेंजमेंट बिटवीन ए गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी एंटिटी and a private sector entity on the other side for the provision of public assets or public services through investment being made or management being undertaken for a specified period by sharing risk and reward against a predetermined user fee in terms of annuity or toll, and it is for a limited period. So this is the definition from the Government of India. बिल्कुल ठीक। तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें जो हैं वो व्यूअर्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो एक गवर्नमेंट एंटिटी या स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कोई हो और प्राइवेट सेक्टर हो। दूसरी बात, मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज या कोई डेवलपमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर आके करे। तीसरी बात ये कि उसके अंदर रेवेन्यू या टोल जनरेट हो और वो टोल से जो है प्रोजेक्ट की रेवेन्यूज़ हों और प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके। और चौथी बात ये कि वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए हो। तो ये तीन चार जो कंडीशंस हैं उनको अगर फुलफ़िल करता है प्रोजेक्ट तो वो पीपीपी क्लासीफाई होता है एज़ पर द डेफिनेशन डॉक्टर बाना हैज़ जस्ट रेड आउट, which has been coined by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, PPP cell, where I was myself working for 2 years. देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं और भारत जैसे देश के लिए ये समझना ज़रूरी है कि करीब 69% पॉपुलेशन जो अभी भी रूरल एरियाज़ में रहती है और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही अभी भी कम हुआ है और कई जगहों पर तो एक रोड के ही इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लेना पड़ता है। और कई बार ये देखने में आता है कि जो इसके ऊपर खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से या पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, वो उन जगहों पर ज़्यादा होता है जहाँ पर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या टियर 1 सिटीज़, वेयर एज टियर 2 सिटीज़ एंड रूरल एरियाज़ दे
are still far from being taken up for a integrated and wholesome development. And that is where PPP comes in, and that is where this our series is aiming at कि हम आपको, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको हम इनेबल कर सकें कि आप में से भी कुछ PPP के एंटरप्रेन्योर्स निकल सकें, बन सकें, या PPP प्रैक्टिस करने वाली कंपनियों में अच्छे तरह से जिम्मेदारी के पद पर जिम्मेदारी से काम करके एक बिज़नेस एनवायरनमेंट को अच्छे से बढ़ा सकें और देश की आर्थिक प्रगति में, सामाजिक उत्थान में एक अहम भूमिका निभा सकें। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, पीपीपी क्या है, व्हाट इज़ पीपीपी, व्हाई पीपीपी, व्हाई डज द गवर्नमेंट नीड पीपीपी, व्हाई डज द प्राइवेट सेक्टर नीड पीपीपी, एंड व्हेन we have to apply the PPP. These are the important things that we need to understand. But for a country like India, the most important thing is that if we are aiming to become a 5 trillion economy, then the private sector investment or the PPP projects play a very, very important role. आप क्या सोचते हैं डॉक्टर? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं ये कहूँगा कि आज जो हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और इसमें जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो देश के सभी सेक्टर्स को इम्पैक्ट करती हैं और इसके अकेले चलते रहने से देश में एक आर्थिक प्रगति की रफ्तार बनी रहती है। और अगर हम यही रफ्तार बनाए रखेंगे जो कि हमारे वर्तमान नीति निर्धारक बनाए हुए हैं, तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम उम्मीद से पहले 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन और उससे ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हम दोनों का जो एक्सपीरियंस है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में काम करने का, ना सिर्फ इंडिया में बट इंटरनेशनली, उससे कुछ लाभ उठाएंगे और हमारा देश जो है लगातार पीपीपी नंबर ऑफ़ पीपीपी प्रोजेक्ट्स में नंबर ऑफ़ पीपीपी प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे हमारे देश में, क्वालिटी पीपीपी प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे। लेकिन अभी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आप लोगों के साथ कुछ समय में शेयर करेंगे। डॉक्टर बाना, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि क्या हमारे मन में चल रहा है? हाँ जी, मैं आपको ये संकेत देना चाहूँगा कि हमारी इस श्रृंखला जो हमारी सीरीज़ है इन एपिसोड्स की, उसका सबसे पहला एम है कि आप लोगों की जागरूकता पीपीपी के बारे में बढ़ाना और उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके आना, उससे भी बेहतर करना, और उसके बाद आप लोगों को इनेबल करना कि भाई आप अगर पीपीपी प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें नीति निर्धारकों को ये बताना है कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिसी को आप थोड़ा सा लाएं, थोड़ा इधर करें, और उससे एक तरह से हम इस पीपीपी को उन क्षेत्रों में, उन सेक्टर्स में, उस लेवल पे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हमारे टीयर 2 सिटीज़ के लिए, टीयर 3 सिटीज़ के लिए, जिससे कि वो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठा सकें और एक्चुअल आर्थिक प्रगति को और तेज़ी से बढ़ाया जा सके। बिल्कुल ठीक आप संकेत दे रहे हैं कि जब तक हम पीपीपी को शहरों से अपने बड़े शहरों से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लेके जाएंगे, तब तक हमारे देश में जो विकास की प्रगति है वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो अभी बड़े पीपीपी प्रोजेक्ट्स हम लोग कर पा रहे हैं, उसके साथ साथ हम उसको कैसे छोटे शहरों में या ग्रामीण क्षेत्र में लेके जाएं और कैसे वहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करें। साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग हम लोग को फीडबैक दें कि ये एपिसोड जो हमारा पहला एपिसोड था, इसमें हमने एक कोशिश शुरू की है, तो आने वाले एपिसोड्स में आप हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, वो आप
आप हमें ईमेल करके भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी इस श्रृंखला में, इस एपिसोड में सबसे एंड में आपको मिलेगा। With that, we come to the end of today's episode. Thank you for being with us and viewing us so patiently. I request you to click the like button, subscribe and post your comments in Yes. the comment box. And our email ID is displayed on the screen. And till we come back, keep viewing. Thank you very much. Namaste. नमस्ते।